સોલંકીકાલીન સમાજના આદર્શ પુરુષોની કલ્પના અદ્ભુત છે અને આમાં જ 12મી સદીના ગુજરાતનું સમાજ દર્શન કે જીવન દર્શન આપણને થઈ જાય છે। આમ હેમચંદ્રાચાર્ય આવા પાત્રો દ્વારા ગુજરાતની એકતા, અસ્મિતા અને સંસ્કારના ઘડતરમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે। હેમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથો ખાસ કરીને મહાદેવ સ્તોત્રના અધ્યયન અને પરિશીલનથી તેમનો સર્વધર્મ પ્રત્યેનો સંભાવ ગુજરાતી પ્રજાને સમજાયો છે। આજે પણ ગુજરાતની પ્રજા સર્વધર્મ પ્રત્યે એટલો જ સંભાવ દર્શાવે છે જેટલો હેમચંદ્રાચાર્ય સોમનાથ મહાદેવની સ્તુતિ રચીને સમજાવ્યો હતો। સાંપ્રદાયિક સંકુચિત દ્રષ્ટિકોણને નાબૂદ કરવાનો તેમનો પ્રયત્ન અહીં જોવા મળે છે। તેમના જીવન દર્શનનું ઉદાર દર્શન એ જ છે કે ગુજરાતનું સોલંકીકાલીન સમય એ બાબતનો પુરાવો છે। કુમારપાળ રાજાનો સુવર્ણ સિદ્ધિનો પ્રયોગ કુમારપાળ અને હેમચંદ્રાચાર્ય માટે આદર્શ સમાજ એ તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। આ પ્રયોગ દ્વારા ગુજરાતના સમાજમાં રાજાની પ્રજા માટેની ઉત્તમ ભાવના ઉજાગર થાય છે। સુવર્ણ સિદ્ધિના પ્રયોગથી સર્વ દુઃખોની મંત્રથી સામાન્ય પ્રજાને મુક્તિ આપવાની રાજાની મહેચ્છા તેમને હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા યોગીનો સહયોગ આદર્શ સમાજનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે। આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો આપણને હેમચંદ્રાચાર્યના ઉદાર જીવન દર્શનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। સોલંકીકાલીન ગુજરાતની રાજધાની અણહિલવાડ પાટણ અનેક વિદ્વાનો અને સરસ્વતીના આરાધકોની કર્મભૂમિ અને વિદ્યાનું આરાધ્ય ધામ હતું। આ પાટણમાં શ્રી અને સરસ્વતી બંને એક સાથે રહેતા હતા। શ્રી અને સરસ્વતીનો સંયોગ વિદ્વાન અને સર્વજ્ઞ પંડિત હેમચંદ્રાચાર્યને આભારી છે। જેના બે ઉત્તમ દ્રષ્ટાંતો છે સુવર્ણ સિદ્ધિનો પ્રયોગ અને સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસનની શાહી સવારી કે જેમાં રાજા પોતે નતમસ્તકે ચાલતા હતા અને સમગ્ર નગરની પ્રદક્ષિણા કરી હતી। જૈન સાધુઓમાં સૂર્યપદ આજે પણ ઘણું ઉત્તમ ગણાય છે। 8 વર્ષની વયે દીક્ષા લઈ અને એ યુગની સર્વ વિદ્યાઓમાં નૈપુણ્ય પ્રાપ્ત કરીને 21 વર્ષની વયે સૂર્યપદ પ્રાપ્ત કર્યું। આચાર્ય પ્રૌઢ થયા ત્યાં સુધી તેમના પ્રત્યે ગુજરાતના જૈન સમાજ, ગુજરાતની જનતા તેમજ સોલંકી રાજવીઓ આદર સન્માન ધરાવતા હતા। હેમચંદ્રની આજ્ઞાથી પાટણની આણ પ્રવૃત્તિ હતી તેવા પ્રદેશમાં જીવ હિંસા સંપૂર્ણ બંધ હતી। આચાર્ય હેમચંદ્રની આધ્યાત્મિક ચેતના તેમના લખેલા ગ્રંથો યોગશાસ્ત્ર, 63 સલાહા પુરુષચરિત અને પરિશિષ્ટ પર્વ તેમજ મહાદેવ સ્તોત્ર, મહાવીર સ્તોત્ર અને વિતરાગ સ્તોત્રમાં દ્રશ્યમાન થાય છે। સંસ્કૃત દ્વયાશ્રય મહાકાવ્યના પ્રથમ સર્ગમાં જે હેમચંદ્રની નિષ્પૃહ અને સાંપ્રદાયિક સંકુચિતતા રહિત ચેતનાનો અણસાર આપણને આપી જાય છે। હેમચંદ્રને મન મહેશ્વર અને બ્રહ્મા એ જ અર્હત છે। ત્વમ ઈશો ભવિનામ અર્હન ભવાન વિષ્ણુ વાનજઃ આચાર્યનો સર્વધર્મ સંભાવનો પ્રયોગ પ્રબંધ ચિંતામણીમાં મેરુતુંગે નોંધ્યો છે। હેમચંદ્રાચાર્ય ઉપર જીવન દર્શનના શ્યાદવાદનો પ્રબળ પ્રભાવ હતો। શ્યાદવાદના પ્રભાવને કારણે હેમચંદ્રાચાર્યમાં અન્ય ધર્મ અને દર્શન પ્રત્યે સહિષ્ણુતા અને સમદ્રષ્ટિ મળી છે। હેમચંદ્રાચાર્યની આધ્યાત્મિક ચેતનાના દર્શન આપણને તેમના 63 સલાહા પુરુષ ચરિત્રમાં આલેખાયેલા 63 સલાહા પુરુષોના ચરિત્રમાંથી જીવન સમય કરતા જે તમારો નિષ્કર્ષ છે પેપરના એની ઉપર થોડી હાઇલાઇટ કરો તો તમારે જે કહેવું છે કે અથવા જે મહેનત કરી છે તે પડી જશે। સનતભાઈ જોશી। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा जो अभ्यास लेख है उसका विषय है हेमचंद्राचार्य का रूपक। उसमें संक्षिप्त किया है, वैसे तो व्यापक अर्थ में भी ले लिया है। रूपक यानी कि नाटक विचार, नाटक को भी हम रूपक मानते हैं। कृप्तम व्याकरणम नवम विरचितम छंदो नवम द्वयाश्रय अलंकारो प्रथितै नवौ प्रकटितौ श्री योग शास्त्र नवम बद्धम येन केन केन विधिना मोहकृतो दूरत। ऐसे हेमचंद्राचार्य का युग हेममय था जिसका प्रभाव आज भी हम देख सकते हैं।
श्री शक्तिचार्य गणी ने कहा है कि ऐसे विरल मनुष्यों की सूची में हेमचंद्राचार्य का नाम निःशंक रूप से रखते हैं। अखिल विश्व जिसे कलिकाल सर्वज्ञ करता है, ऐसे विनम्र वितरागी भगवती जगदम्बा का जिसने साक्षात्कार किया है, ऐसे आचार्य स्वयं को भगवान के स्तवन के लिए योग्य न मानते हुए क्वा हम पशुओं की पशु ऐसा करते हैं। यहाँ पर आचार्य की विनम्रता, निराभिमान और संपूर्ण सभानता का दर्शन होता है। आचार्य की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाने के लिए हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा बिरुद प्राप्त हुआ। अतः पंडित श्री बेचरदास जोशी ने हेमचंद्र की प्रशस्ति करते हुए उनको जीवंत पुस्तकालय, मूविंग लाइब्रेरी कहा है। इस शोध पत्र का विषय जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह काव्यानुशासन में रूपक यानी कि नाटक विचार, उसमें आचार्य ने नाटक के बारे में अपना चिंतन, उसके साथ साथ भरतनाट्य शास्त्र और धनंजय दशरूपक, रामचंद्र गुणचंद्र रचित नाट्य दर्पण आदि ग्रंथों में निरूपित लक्षण विवेचन, उनकी भी इस शोध पत्र में समीक्षा की गई है। उसमें से जो निष्कर्ष निकलता है उसको विनम्रतापूर्वक हम रख रहे हैं। इस नाटक जैसे विशाल और गहन विषय के बारे में भरत, रुद्रट, अभिनव, भोज, धनंजय जैसे पूर्वाचार्यों ने सूक्ष्म चिंतन किया है। यहाँ पर आचार्य हेमचंद्र भी निर्मित सोपान परंपरा पर आरूढ़ होते हुए उनके विचारों को इस शोध पत्र में हमने दूषित नहीं किया, अपितु विभूषित किया है। काव्यानुशासन में निरूपित नाटक विचार की बात करें तो आचार्य हेमचंद्र काव्यानुशासन के अष्टम अध्याय में काव्य के विभिन्न भेदों की चर्चा की करते हैं। आचार्य हेमचंद्र काव्य के प्रमुख दो प्रभेद मानते हैं, दृश्य यानी कि प्रेक्ष्य, श्रव्य यानी कि अनअभिनय। आचार्य हेमचंद्र कहते हैं कि जो ऋषि नहीं है वह कवि नहीं। दर्शन और वर्णन करने के लिए सक्षम होने के कारण ऋषि को भी कवि कहा गया है, जैसे वाल्मीकि आदि। यह दृश्य और वर्णन करने के कारण जो कार्य होता है उसे काव्य कहा जाता है। इस तरह कवि का जो कर्म होता है उसे आचार्य हेम काव्य करते हैं। यहाँ पर आचार्य हेम ने अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतौक का संदर्भ दिया है, काव्यानुशासन पान नंबर 352। उसमें आचार्य कुंतक भी भट्टतौक का अनुगमन करते हुए कवि कर्म को ही काव्य बताते हैं। काव्यानुशासन में कवि कर्म के बारे में भट्टतौक और आचार्य कुंतक का प्रभाव दृश्यमान होता है। आंगिक, वाचिक इत्यादि चतुर्विध अभिनय से युक्त काव्य प्रकार को प्रेक्ष्य यानी कि दृश्य काव्य कहा गया है, जबकि जिसमें उपरोक्त 4 अभिनय शून्य काव्य प्रकार को श्रव्य काव्य कहा है। काव्यानुशासन 8.2 में दृश्य काव्य के प्रभेदों का वर्णन करते हुए दृश्य काव्य के पाठ्य और गेयात्मक, दृश्य काव्य पाठ्य और गेयात्मक ऐसे 2 प्रधान भेद आचार्य हेम मानते हैं। उसमें भी पाठ्य यानी कि अभिनय से युक्त संवादात्मक काव्य के प्रभेदों में धनंजय ने दशरूपक में प्रतिपादित किए हुए नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, गीत इत्यादि दशरूपकों के उपरांत आचार्य श्री नाटिका और सट्टकादि प्रभेदों का भी पाठ्य दृश्य काव्य के भेद में आचार्य हेम मानते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य ये बात है कि आचार्य हेम के समकालीन आचार्य धनंजय ने अपने दशरूपक में नाटक आदि दशरूपकों का उल्लेख किया है। हेमचंद्राचार्य के अनुगामी और उनके शिष्य रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण में 12 रूपक भेद बताए हैं। उसमें उन्होंने धनंजय आदि आचार्य ने बताए हुए प्रचलित दशरूपकों में नाटिका और प्रकरण ये 2 भेद मिलाकर 12 रूपक भेद बताए हैं। आचार्य हेम रूपक के भेदों की 12 ऐसी संख्या निश्चित नहीं करते, बल्कि रूपक के प्रकरण भेद के स्थान पर सट्टक इत्यादि प्रभेदों को स्वीकार करते हैं। नाट्य दर्पण में प्रकरण इत्यादि 4 भेदों को पूर्ण दशा संधि से युक्त रूपक मानते हैं, जबकि आचार्य श्री ने ऐसे भेद दिखाए नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि नाट्य दर्पण और दशरूपक में रामचंद्र, गुणचंद्र और धनंजय ने रूपक प्रभेदों के बारे में भरत का अनुसरण करते हुए अपनी ओर से भी कुछ वेदों को व्याख्यायित किए। ऐसा आचार्य हेम के काव्यानुशासन में दिखता नहीं है। इसके पीछे कुछ सारस्वत
मालव परंपरा और काश्मीरी परंपरा के तत्कालीन सामाजिक एवं राजकीय संकट को कारण मानते हुए कहते हैं कि आचार्य हेम ने काव्यानुशासन में काव्यशास्त्रीय चर्चा में भोज की मालव परंपरा को छोड़कर काश्मीरी परंपरा को पुरस्कृत किया। वैसे ही नाट्यशास्त्र चर्चा में भी मालवपति मुंज के दरबारी आचार्य धनिक धनंजय को न देखकर भरत मुनि की मूल काश्मीरी परंपरा को पुरस्कृत किए, ऐसा सारस्वत लोग मानते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पर हम दशरूपक को देखें तो धनंजय ने भी प्रामाणिकता से स्वीकार करते हुए कहा है प्रारंभिक दशरूपक के, यह दशरूपक ग्रंथ नाट्यशास्त्र का ही संक्षिप्त रूप है, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा धनिक धनंजय स्वीकार करते हैं। और मंगल श्लोक में धनंजय ने भरत को प्रणाम किया है। मालव नरेश की प्रशंसा करते हुए आचार्य हेमचंद्र ने स्वयं काव्यानुशासन में लिखा है कि यद वा प्रख्यात वस्तु विषय, उसमें प्रख्यात का जो वो आचार्य हेम व्याख्या करते हैं, इसमें लिखा है यद वा प्रकर्षेण ख्यातम दश है मालव पांचाल्यादि यस्मिन्। मालव की मुझ का तो वो भी प्रशंसा करते हैं, फिर मालव परंपरा को न स्वीकारने की बात तो काव्यानुशासन आचार्य हेमचंद्र तो वितराग में मानने वाले थे, तथा साहित्य क्षेत्र में ऐसा छुआछूत आचार्य मानते हैं, ऐसा कहना प्रमाण संगत नहीं। उस समय नाट्यशास्त्रीय चर्चा में भरत मुनि की ही एक परंपरा प्रवर्तित थी, जिसे धनंजय और हेम जैसे सभी आचार्यों ने विभूषित करते हुए स्वीकार किया है। वैसे तो रामचंद्र गुणचंद्र ने आचार्य हेमचंद्र से विपरीत रसानुभूति को केवल अलौकिक न मानते हुए सुख दुखात्मक कहा है। वो भी महत्वपूर्ण बाबत है कि आचार्य के शिष्य होते हुए भी आचार्य की परंपरा को न मानते, सुख दुखात्मक मानते हैं मालव परंपरा। यहाँ पर रामचंद्र गुणचंद्र ने कश्मीरी परंपरा का विरोध किया, ऐसा करना के बजाय उसकी मौलिक प्रतिभा का दर्शन करना ठीक होगा। आचार्य विश्वनाथ ने भी काव्य के अन्य निमित्त भेद काव्य के दृश्य और श्रव्य भेद बताए। आचार्य हेम ने प्रेक्ष्य काव्य भेद को अभिनयात्मक नाटक प्रकरण संवकार इत्यादि को पाठ्य मानते हैं, अर्थात वाक्यार्थ के अभिनय मानते हैं। आचार्य हम भरत नाट्यशास्त्र के अनुरूप प्रख्यात वस्तु से युक्त उदात नायक वाला राजर्षि वंश चरितम दिव्याशयोगीतम इत्यादि से शोभित को नाटक करते हैं। प्रख्यात विषय वस्तु विषयों की विशद चर्चा आचार्य हेम ने विवेक में करते हुए वस्तुगत और विषयगत यानी कि देश विशेष प्रख्याति को करते हैं। तीसरी प्रख्याति प्रख्यात उदात आदि नायक वाला नाटक होता है। प्रख्यात में क्या क्या प्रख्यात होता है? नाटक में नायक धीरोदाता भी चतुर्विध हो सकता है। रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण में कहते हैं कि नायक का मूलतः स्वभाव जैसा भी हो, किंतु कवि को धीरोदातादि स्वभाव से नायक का स्वभाव निरूपण करना चाहिए, जो भी हो। आचार्य हम भरत अनुसार नाटक को राजर्षि वंश से चरित मानते हैं। और संक्षेप में कुछ बात बता दूं कि आचार्य हम काव्यानुशासन ग्रंथ काव्यशास्त्री और नाट्यशास्त्रीय विषयों का विवेचन का समन्वयात्मक ग्रंथ है, जबकि उनके शिष्य रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण ग्रंथ केवल नाट्यशास्त्रीय चर्चा का विस्तृत और संपूर्ण निरूपण है, जिसमें आचार्य हेम ने जो नाट्यशास्त्र चर्चा काव्यानुशासन में नहीं की है, ऐसे सभी विषयों को रामचंद्र गुणचंद्र ने अपने ग्रंथ में विशद रूप से स्पष्ट किया। अंत में ये नाटक की चर्चा निकली है। एक बात बताओ कि कल डॉक्टर वसंत कुमार भट्ट गुरुवर्य है, उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतल की बात बताई, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम उनके घीवर प्रसंग को याद किया था। और उन्होंने कहा कि घीवर के पास से जो मुद्रा मिट्टी मिली, तो पश्चिम के नाट्यकार होते तो क्या करते? पर्दा डाल देते और उसको ट्रेजेडी बना देते। लेकिन कालिदास ने ही सप्तमल आगे बढ़ाया, उसका जवाब उस वक्त नहीं मिला, लेकिन उसका भी हम समाधान कर देते हैं कि नाटक आदि मानव जीवन, वैसे देखें तो नाटक आदि मानव जीवन का प्रतिबिंब है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में, नाट्य साहित्य में भारतीय मानव जीवन संपूर्णतः प्रतिबिंबित हुआ है। भारतीय संस्कृति
आशावादी दृष्टिकोण से युक्त है। अतः आचार्यों ने अपने नाट्याचार्य इत्यादि में नायक के लिए संघर्ष युक्त फल प्राप्ति आवश्यक करी। नायक को फल प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन संघर्ष वैसे नहीं। जैसे ग्रीस नाटकों में भी संघर्ष होता है, लेकिन फल प्राप्ति नहीं होती। निराशावादी ग्रीस नाटकों की तरह भरत मुनि ने दुखांत नाटकों को जन्म नहीं दिया। ग्रीस के दुखांत नाटकों में महापुरुषों का उदार चरित्र हमारे सामने होता है। पश्चिम के करुणांत नाटक हमें नियतिवादी बनाते हैं, जबकि संस्कृत के सुखांत नाटक हमें पुरुषार्थवादी बता रहे। इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य के नाट्यकार कालिदास इत्यादि ने नाटक को सुखांत माना। वहाँ तो खत्म हो जाता है, मुक्ति हो जाता है नायक या नायिका का। धन्यवाद। હેમચંદ્રાચાર્ય શબ્દાનું શાસનમાં પર્વત નદીઓ બીજા કોઈને ઉપર વાંચવાના હોય તો વનો વગેરેનું વિવેચન પ્રાપ્ત થાય છે. હેમચંદ્રાચાર્યના કરેલા ઉલ્લેખો પરથી જાણવા મળે છે કે તેમના સમયમાં પર્વતની આજુબાજુ રહેનારા લોકોને શસ્ત્રધારી હતા. તેમને પર્વતાક્ષ 60 નંબરનું સૂત્ર આપીને પર્વતીય રાજા પર્વતીય કુમાર, જેમ કે તેઓ પહાડી પ્રદેશમાં રહેવાવાળાને બતાવવા માટે પર્વત શબ્દ બતાવવામાં આવ્યો છે. જેમ કે પહાડી વિસ્તારનો રાજા અને પહાડી પુરુષ બંને પર્વતીય કહેવાય છે. માર્કંડેય પુરાણમાં તિજક, હુન્નર, પૂજા, જલારાબાદ અર્થાત કાગડાથી માંડીને અફઘાનિસ્તાનના પર્વતીય લોકોને પર્વતીય અથવા પર્વત આશ્રિય કહેવામાં આવે છે. મહાભારત ઉદ્યોગ પર્વમાં પણ ગંધાર રાજ શત્રુની પર્વતીય એટલે ગંધાર દેશનો રાજા પહાડી લોકોના સમૂહનો અધિપતિ હતો. પૌરાણિક પર્વતોમાં વિજયાત, પુષ્કરાત, નિસર્ગ, નીલ વગેરેનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે. વિજયાતને અમુક વિદ્વાન હિમાલયનો જ એક અંગ માને છે. અંજન નદીના ગીરમાં પરંપરાથી ચાલી આવેલા પર્વતોનો નિર્દેશ અંજ ગણથી થયો છે. જેવી રીતે અંજનાગીરી, ત્રિશુલકાગીરી, શાશ્વતગીરી, લોહિકાગીરી, આ રીતે 10 પહાડોના નામોનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. હેમચંદ્રાચાર્ય હિમાલયની એક શિખર ગૌરીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આનું વર્ણન મહાકવિ કાલિદાસના કુમાર સંભવમાં પાર્વતી તપશ્ચર્યા પ્રસંગમાં પણ ઉલ્લેખ થયો છે. આ શિખરમાં મોર રહેતા હતા. હેમચંદ્રાચાર્ય આ જ પ્રસંગમાં કૈલાસ પર્વતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જીનસેનના મહાપુરાણમાં પણ કૈલાસ પર્વતનું વિશિષ્ટ વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું શિખર ઘણું ઉન્નત હતું. તેમાં નાના પ્રકારના મનીજની અનેક ગુફાવાળા અને હિંસક પશુઓ પર નિવાસ કરતા હતા. રેવતગીરી આ એક ગુજરાતનું પ્રસિદ્ધ પર્વત છે. અત્યારે તેનું નામ ગિરનાર છે. પુરાણોમાં તેમને રેવતન પર્વત કહેવામાં આવતો હતો. આ કાઠિયાવાડ પ્રાંતમાં જુનાગઢ નજીકની પાસે આવેલો છે. મહાકવિ માગે એમના શિશુ પર્વત મહાકાવ્યમાં શ્રી કૃષ્ણની સેના દ્વારિકાથી ચાલીને રેવતન પર્વત પર શિબિર બાંધવાનું અતિરિક્ત વિવિધ ક્રીડાઓનું વર્ણન પણ કરેલું છે. જૈન સાહિત્યમાં આ પર્વત ખૂબ ઘણો પ્રસિદ્ધ અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. મલ્યવાન પર્વત આ દક્ષિણ પથનો પર્વત છે. રામાયણમાં આનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં સુગ્રીવની પ્રાર્થના બાદ શ્રી રામચંદ્રએ વર્ષાકાળ વ્યતીત કર્યો હતો. પરિયાત્ર પર્વત આ ભારત વર્ષનો એક પર્વત છે. સંભવતઃ આ વિંધ્ય પર્વતમાળાનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે, જે પ્રાચીન ખાડીની આજુબાજુનો અમુક ભાગ છે. અમુક ઐતિહાસિક વિદ્વાનોના મત મુજબ આ હિમાલયની શિવાલિક પર્વતમાળાનું નામ છે. અમુક વિદ્વાનો જયપુર અને મેરુસ્થળના મધ્યમાં વિસ્તૃત પર્વતમાળાના દક્ષિણ ભાગને પરિયાત્ર માને છે, જે હાલમાં પથ્થર કહેવાય છે. શત્રુંજય પર્વત કાઠિયાવાડમાં એક આ નાનો પર્વત છે. આ પર્વત પર લગભગ 600 જૈન મંદિરો આવેલા છે. આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય ગિરનારથી શત્રુંજયનું અંતર બતાવવા માટે એક સૂત્ર આપ્યું છે. રેવતરાજ પ્રશસ્તિ શત્રુંજયે
સૂર્યમ પાતયતિ એટલે રેવતથી જો પ્રાતઃકાળે જો નીકળી જવામાં આવે તો સૂર્યાસ્ત થતાં થતાં ત્યાં પહોંચી જવામાં આવે છે. પછી બીજું છે પ્રકૃતિ વર્ણનમાં નદીઓ. ગિરિ નદ્યાદિના એ સૂત્રથી હેમચંદ્રાચાર્ય બે પ્રકારની નદીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, ગિરિ નદી અને વચ્ર નદી. ગિરિ નદી કેને કહેવામાં આવે છે કે જે પહાડી પ્રદેશની હોય, જે ઝરણાના રૂપમાં પ્રવાહિત થતી હોય. પછી વચ્ર નદી. વચ્ર નદી એ પ્રકારની નદી છે જેનો પ્રવાહ ખૂબ લાંબો હોય અને દૂર સુધી પ્રવાહિત હોય, જેનું પાણી ખૂબ ઊંડું હોય. દૂર સુધી પ્રવાહિત હોવાથી વચ્ર નદીની આજુબાજુ વસ્તી વધે, મોટા ગામો નગરો વગેરેનો પણ ત્યાં વસવાટ થશે. મિત્રો ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું. 5 મિનિટમાં માત્ર સારાંશ તમે વિચાર રાખજો. તમારા પેપરનો સારાંશ જ કહેવાય ભાઈ. આખું પેપર અક્ષર વાંચો એના કરતાં તમારે જે કહેવું છે પેપરમાં સારાંશ 5 મિનિટમાં તો વિચાર રાખજો. રીતે સંતસ્ત મહાનુભાવ તેમજ મારી સામે મિત્રો વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, મારો વિષય છે આજનો શબ્દાનુશાસનમાં નિર્દિષ્ટ વર્ણમાલાનો વિવરણાત્મક અભ્યાસ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને તત્કાલીન તથા પૂર્વવર્તી લગભગ 8 જેટલા વ્યાકરણ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીને એક અભૂતપૂર્વ ગ્રંથ સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસનની રચના કરી હતી. આ સંપૂર્ણ ગ્રંથ 8 અધ્યાયમાં વિભક્ત છે. તેના 1 થી 7 અધ્યાયોમાં સંસ્કૃત ભાષાના 8 અધ્યાયમાં પ્રાકૃત ભાષાને લગતો વ્યાકરણ ગ્રંથની પ્રક્રિયાનો ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. અધ્યાય 1 થી 7માં પદ વિષય તથા સંધિ વિશે થનારા ધ્વનિ પરિવર્તનો નામ પદોની સિદ્ધિને લગતા વગેરે સૂત્રોનું પ્રણયન કરવામાં આવ્યું છે. સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસનના અધ્યાય 1માં વર્ણધ્વનિઓનો પરિચય કરનારા 14 જેટલા સૂત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રસ્તુત લેખમાં આ સૂત્રોના આધારે આચાર્ય હેમચંદ્ર સૂરીને વિપરીત વર્ણમાલાનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. 1. ઔદાંતાઃ સ્વરાઃ 1-1-4. વર્ણમાલાનો નિર્દેશ હેમચંદ્ર મુજબ પ્રસ્તુત સૂત્ર પ્રમાણે અકારથી આરંભી ઔકાર પર્યંતના સ્વરો છે. આ સ્વરોની સંખ્યા અ, આ, ઈ, ઉ, રૂ, ઋ, ઋ, એ, ઐ, ઓ, ઔ આમ કુલ 14 છે. એક દ્વિમાત્રા હસ્વ દીર્ઘ પ્લુતાઃ 1-1-5. હેમચંદ્ર મરના મતે તેના ઉચ્ચારણોની સ્વરની માત્રા મુજબ 3 ભેદ પડે છે. 1. રસ્વ અ, ઈ, ઉ, ઋ. 2. દીર્ઘ આ, ઈ, ઉ, ઋ. 3. પ્લુત આ, ઈ, ઉ. અનવર્ગનાંત 1-1-6. અવર્ણ સિવાયના વર્ણોની નામી સંજ્ઞા થાય છે. અર્થાત ઈ, ઉ, ઋ, એ, ઐ, આ, ઔ આટલા સ્વરવર્ણોની નામી સંજ્ઞક છે. લૃદંતાઃ સમાનાઃ. લૃકાર સુધીના સ્વરોની સમાન સંજ્ઞા થાય છે. તદ અનુસાર અ, આ, ઈ, ઉ, ઋ સ્વરોની સમાન સંજ્ઞા કરવામાં આવે છે. એ, ઐ, ઓ, ઔ સંધ્યક્ષરમ 1-1-8. ઉક્ત વર્ણો સંધ્યક્ષર કહેવામાં આવે છે. અહ અનુસ્વાર વિસર્ગો 1-1-9. તથા અનુક્રમે અનુસ્વાર તથા વિસર્ગ કહેવામાં આવે છે. આ અનુસ્વાર નાસિકા તથા વિસર્ગ કંઠ્ય વર્ણો છે. અકારનો નિર્દેશ અનુસાર તથા ઉચ્ચારણ કરવામાં આવ્યું છે. વિસર્ગ માટે સંધિ સાધિ વ્યંજનમ 1-1-10. કથી આરંભી હકાર સુધીના વર્ણો વ્યંજનો છે. ક થી હ સુધીમાં કુલ 33 વર્ણોની સંજ્ઞા વ્યંજન સંજ્ઞા કરવામાં આવી છે. અપચયમ માનતો ભૂત
સૂત્રમાં ફૂટ સંજ્ઞાનું વિધાન છે તદનુસાર પ્રથમથી ચતુર્થ થતા ઉષ્મ વર્ણોની ફૂટ સંજ્ઞા થશે, જ્યારે પંચમ અને અંતસ્થ વર્ણોનો ફૂટ સંજ્ઞા અંતર્ગત સમાવેશ થશે નહીં તથા અંતસ્થ વર્ણોનો નિર્દેશ કરીને સ્વયં વર્ણમાલામાં પ્રથમથી પંચમ તથા અંતસ્થ વર્ણોનો પરિચય કરવામાં આવે છે. જોશી મહારાજ नमो नमः सभापति यस्य नमो नमः। आदरणीय गुरुजन, मेरे आत्मीय सुरजन वर्ग और प्रिय छात्र वर्ग, मेरा विषय है पाणिनि और हेमचंद्राचार्य एक विचारणा। हम कई बार हेमचंद्राचार्य का व्याकरण का एक प्रकरण लेते हैं और साथ में कोई आचार्य का व्याकरण का एक प्रकरण लेते हैं और उसकी तुलना करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर क्या ये उचित है या अनुचित, इसके बारे में मैं आज कुछ बात करने जा रहा हूँ और साथ में मेरा पक्ष भी मैं रख रहा हूँ। तो कोई भी व्याकरण की अगर हम किसी व्याकरण के साथ तुलना करते हैं तो 3 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि उसका दोनों का कालखंड दिखना चाहिए। दूसरी बात है ये है कि वो जो व्याकरण है इस रचना का उद्देश्य क्या है, और तीसरी बात ये है कि दोनों की व्याकरण शैली क्या है। ये 3 बातों से हम हेमचंद्राचार्य और पाणिनि के व्याकरण को देखेंगे। पहली बात है कि हेमचंद्राचार्य की जो व्याकरण था इसकी रचना का उद्देश्य क्या था। तो हम जानते हैं कि गुर्जरेश्वर सिद्धराज ने मालवा पर चढ़ाई कर दी, मालवा पर जीत हासिल कर दी और वहां से सारी संपत्ति ले आए। सारी संपत्ति ले आए, इतना ही नहीं, इसमें एक सरस्वती कंठाभरण नाम का व्याकरण भी मिला। इस व्याकरण को देखा, राजकीय असूया उत्पन्न हो गई और अपने यहाँ भी ऐसा कोई व्याकरण रचना चाहिए, ऐसी उनको मनीषा भी उत्पन्न हुई। अपने सभा पंडितों को कह दिया कि ऐसा एक व्याकरण हमको भी चाहिए, तुम ऐसे एक रचना कर दो। सारे पंडितों ने हेमचंद्र की ओर देखा और हेमचंद्र ने ये बीड़ा उठा लिया और एक नया व्याकरण रच दिया। यानी कि जो हेम व्याकरण का जन्म है वो प्रतिस्पर्धा में हुआ है, ये बात हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। और उसकी जो व्याकरण शैली है वो भी हम देख लेते हैं। हेमचंद्राचार्य जब व्याकरण रचते हैं 11वीं या 12वीं शताब्दी में, तब उसके सामने पाणिनि की परंपरा प्रतिष्ठित है। साथ ही साथ में अपाणिनि परंपरा के कातंत्र व्याकरण, चंद्रभूमि का व्याकरण, जयदेंद्र व्याकरण और अभिनव शाक्टायन यानी पालेकृति का व्याकरण भी प्रसिद्ध था। तो ये सारी परंपरा को साथ में लेकर हेमचंद्राचार्य चले हैं। इसलिए उनके जो सूत्र है वो सूत्र में भी ये शैली नजर हमें आती है। अब पाणिनि को देखिए, पाणिनि के सामने भी कई व्याकरण थे। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अपने ग्रंथ में बता दिया है कि कौन से उस समय विद्यमान ग्रंथ थे। तो पाणिनि ने क्या किया कि शब्द सामर्थ्य के लिए और संस्कृत भाषा का संवर्धन करने के हेतु व्याकरण रचा, संपूर्ण संस्कृत भाषा का व्याकरण। उस समय संस्कृत तो बोलचाल की भाषा थी, तो बोलचाल की भाषा होने से उन्होंने स्वर, व्यंजन, कारक, वाक्य ऐसे जो प्रचलित शब्द थे उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। हम बार बार कहते हैं कि हेमचंद्राचार्य ने नवीन कर दिया, पर पाणिनि का काल देखिए तो इसमें संस्कृत बोलचाल की भाषा, तो इसमें ये कोई आवश्यकता ही नहीं थी ऐसे लक्षण रचने की। आचार्य ने क्या, पाणिनि ने क्या किया कि संस्कृत भाषा का समृद्ध व्याकरण रचना था। तो उस समय 2 काल
एक लौकिक काल था, दूसरा वैदिक काल था। तो लौकिक और वैदिक इन दोनों को मिलाकर उन्होंने अपना व्याकरण रचा। यानी कि वो ऋषि परंपरा के आचार्य थे और कोई स्वार्थ नहीं था, अंगत स्वार्थ नहीं था, केवल संस्कृत भाषा की सेवा का हेतु था। इसलिए उन्होंने जो व्याकरण रचा वो कालजयी व्याकरण बन गया। उन्होंने पहले क्या किया? पहले 14 माहेश्वर सूत्र रच दिए। 14 माहेश्वर सूत्रों से एक सूत्र बनाया आदिरंत्यन संहिता। आदिरंत्यन संहिता से प्रत्याहार शैली का निर्माण कर दिया। प्रत्याहार शैली का निर्माण करके 43 या 44 ऐसे प्रत्याहार बना दिए और इस प्रत्याहार को अपने व्याकरण में निबद्ध कर लिए और सारा व्याकरण 4000 सूत्रों वाला व्याकरण रच दिया। यानी पाणिनि की प्रज्ञा थी वो स्वयं प्रज्ञा थी, वो स्वयं द्योतित थे, प्रकाशित थे। जैसे दीपक को कोई अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं रहती प्रकाशित करने की, ऐसी पाणिनि की अवस्था थी। इसलिए महति सुश्रुष्मिका वर्तते सूत्रकारस्य सुजानदेशे पवित्र पाणिः आचार्येण महता यज्ञेन सूत्रेण प्रणयति स्म तत्र अनर्थकं वर्णकं ग्रहणं किं प्रणयिता सूत्रेण, ऐसा महाभाष्यकार ने भी कह दिया। ऐसे पाणिनि, अब देखिए पाणिनि का कोई भी सूत्र ले लीजिए, पाणिनि ने क्या किया? प्रत्याहार शैली का तो निर्माण किया, साथ में अनुवृत्ति जैसी अपनी डिवाइसेस, छोटी छोटी युक्ति प्रयुक्तियों को भी प्रयोग कर दिया और इसलिए उनका व्याकरण समृद्ध हो गया। अनुवृत्ति की सहाय के बिना जो जो सूत्र रचे हैं पाणिनि ने, इसमें से कोई भी सूत्र ले लीजिए, प्रत्याहार शैली को जरा समझ लीजिए तो ये सूत्र अपने आप अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर देगा। जैसे उसका पहला ही सूत्र है वृत्तिरादेश। तो वृत्ति ही आद ऐचे, इसमें क्या वृत्ति की आवश्यकता है? अरे गुण अत एंग गुण, एंग समझ लीजिए एवं और रस्वकार है, अकार रस्वकार एकार और ओकार की गुण संज्ञा होती है। भुवादय धातु ले लीजिए, भूवादय धातु संज्ञा स्यु, अपने आप सूत्र चलता है, अपने आप सूत्र अपना अर्थ देने में समर्थ है। पर क्या है में ऐसा है? कोई भी सूत्र ले लीजिए उसका, ओदंताहा स्वरा, ये ओदंताहा क्या मतलब पता है? कोई नहीं। अरे लोकार्थ सूत्र लोक में से लिया, तो लोकार्थ के लिए भी उनको बहुत कुछ कहना पड़ा, तब पता चला कि लोकार्थ का तो यही अर्थ है। यानी हेमचंद्राचार्य को लघु वृत्ति बृहद वृत्ति क्यों रचना पड़ा, ये भी एक संशोधन की बात है। मेरी दृष्टि से तो अपने पूर्व सूर्यों से जो लिया है पाणिनि ने तो स्वीकार कर लिया है, अमगस्फोटायन से साकुणी ही नप्तेति भागुरी ही, ऐसे बहुत कुछ अपने पूर्वाचार्यों के 10 पूर्वाचार्यों के नाम तो उन्होंने अपने व्याकरण में ही दे दिए हैं। यानी मैंने यहां से लिया है, ये कहते थे, पर ये तो आचार्य है, हेमचंद्र है और आचार्य परंपरा प्रतिस्पर्धा से ही टिकी रहती है, बनी रहती है, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यायाम नहीं किया। हाँ, बृहद्वृत्ति में जब देखेंगे तब थोड़ा सा पता चलता है कि यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, पर उनके बर्बर के विद्वान हैं डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री, उन्होंने शब्दानुशासन का जो अध्ययन किया है इसमें एक बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है कि आचार्य ने कहां से क्या लिया। जैनाचार्यों का व्याकरण प्रभा कुमारी ने जो लिखा है इसमें भी ये बात कहीं कहीं मिलती है। यानी कि हेमचंद्राचार्य का जो व्याकरण है वो अपने पूर्व सूर्यों से बहुत कुछ लेता है, कहीं कहीं कुछ छोड़ देता है और कहीं कहीं कुछ नाम परिवर्तन कर देता है। यानी कि सब जो कुछ है वो पूर्व सूर्यों की देन से, इसलिए उनको लघुवृत्ति भी रचनी पड़ी। लघुवृत्ति से संतोष नहीं हुआ तो बृहद्वृत्ति का आश्रय करना पड़ा, और बृहद्वृत्ति में भी कोई बात रह गई तो उसकी शिष्य मंडली ने बड़ा आयाम किया और उस पर भी टीकाएं रची। देखो सारे टीकाएं, पाणिनि में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पाणिनि शब्दों लोके प्रकाशित, वो तो लोक में प्रकाशित था, इसलिए ऐसे कोई व्यायाम की जरूरत नहीं थी। तो दोनों रचना शैली का जो उद्देश्य था वो अलग भिन्न था, दोनों की व्याकरण शैली है वो भी भिन्न है। तो अगर पाणिनि नहीं, मैं तो कहता हूं कि कातंत्र व्याकरण है, इसमें से जो सारी संज्ञाएं हैं हेमचंद्राचार्य ने वो कातंत्र व्याकरण से ली है। जरा संशोधन करना तो पता चलेगा। तो ये सारा संज्ञा प्रकरण है वो कातंत्र की देन,
ऐसे हम दूसरे प्रकरण पर संशोधन करना चाहिए। मैं केवल दिशा सूचन करता हूं, ऐसा करना चाहिए। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि हेमचंद्र पाणिनि से हेमचंद्राचार्य सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, नई कुछ बात करते हैं, तो ऐसा कहने से पहले ये पहलू सबको अपने मद्देनजर रखना चाहिए, अपने ध्यान में रखना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ केवल पाणिनि नहीं, अगर आप कातंत्र व्याकरण के एक प्रकरण को ले लीजिए, हेमचंद्राचार्य का एक प्रकरण ले लीजिए और उसकी तुलना कीजिए, तो कुछ हेमचंद्राचार्य सर्वथा नवीन लगेंगे। ऐसे उनका सर्वाधिक अनुकरण जो हेमचंद्राचार्य ने किया है वो अभिनव वैयाकरण शाक्तायन का अनुकरण किया है। डॉक्टर बिलवालकर ने द सिस्टम ऑफ संस्कृत ग्रामर नामक पुस्तक लिखा है, इसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि शाक्तायन का इतना अनुकरण किया है हेमचंद्राचार्य ने कि वो अंधानुकरण की गति तक पहुंच गया है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। तो इतना आश्रय करने वाले शाक्तायन के साथ भी अगर हम हेमचंद्राचार्य का कोई प्रकरण देखेंगे तो हमको हेमचंद्राचार्य नवीन ही लगेंगे, क्योंकि हेमचंद्राचार्य ने प्रत्येक प्रकरण में अपने पूर्व सूर्यों से कुछ न कुछ लिया है, कुछ न कुछ छोड़ दिया है और कुछ न कुछ का परिणाम परिवर्तन कर दिया है। इस तरह एक नई रचना बना दी है। तो अगर आप हेमचंद्र का अच्छी तरह से संशोधन करना चाहते हैं, हेम व्याकरण का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहते हैं, तो हेम व्याकरण का कोई भी प्रकरण पहले पसंद करना पड़ेगा और साथ में साथ उनकी जो सारी परंपरा उनके आगे थी पूर्व सूर्यों की, उसमें देखना पड़ेगा इसमें से क्या हेमचंद्र ने लिया है, क्या छोड़ दिया है, क्या नाम परिवर्तन के लिए लिया है। ऐसा करेंगे तो ही ये तुलना अच्छी होगी। और इसलिए हेमचंद्र का संज्ञा प्रकरण और पाणिनि का संज्ञा प्रकरण, पाणिनि का कारक प्रकरण और हेमचंद्र का कारक प्रकरण, पाणिनि का तद्धित प्रकरण और हेमचंद्र का तद्धित प्रकरण, ऐसी तुलना कभी भी हो सकेगी नहीं, क्योंकि वो एक ही पक्ष में बात है। जो प्रकरण रचे हैं इसमें अपने पूर्व सूर्य से बहुत कुछ लिया है हेमचंद्राचार्य ने और बिना नाम लिए लिया है। इसलिए कहां से लिया है वो ढूंढने की बात है, वो संशोधन की बात है। इसलिए जब हम कोई आचार्य का कोई एक प्रकरण लेकर कोई आचार्य का दूसरा प्रकरण के साथ तुलना करते हैं तो हमें ये तीन बातों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि पहला तो है कालखंड, दूसरा वो व्याकरण की निर्मिति किस संजोगों से हुई ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और तीसरी बात ये दोनों की व्याकरण शैली किस प्रकार की है ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ही हम किसी आचार्य को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, न्याय दे सकेंगे। इस तरह हेम व्याकरण का मूलतः अध्ययन करना चाहिए और ऐसे प्रत्येक प्रकरण में कौन से पूर्व सूर्य से आचार्य ने क्या लिया है उसकी भी बात हमें सोचनी चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। और मैं बार बार ये बात करना चाहूंगा कि पाणिनि की जो परंपरा थी और उसी परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा थी, अपने विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने हेतु और संस्कृत भाषा का संवर्धन करने हेतु, भाषा समृद्धि को आगे बढ़ाने हेतु और साथ ही साथ संस्कृत का समग्र व्याकरण रचने हेतु अपने व्याकरण की रचना की है। इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं था, कोई निजी स्वार्थ नहीं था। इसलिए हेमचंद्राचार्य जो प्रतिस्पर्धा में कोई व्याकरण की स्पर्धा करके लिखते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि पाणिनि व्याकरण की स्पर्धा में भी हेमचंद्राचार्य का व्याकरण लिखा गया है। आप सोचेंगे देखेंगे तो ये पता चलेगा, क्योंकि अष्टाध्यायी व्याकरण रचा तो पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण तो था ही, फिर भी उन्होंने भी अष्टाध्यायी व्याकरण रचा। पाणिनि ने जैसे अपने लोक और वेद का व्याकरण रचा तो हेमचंद्राचार्य ने भी लोक और प्राकृत का व्याकरण रचा, क्योंकि वो जैनाचार्य थे। इस तरह पाणिनि से बहुत कुछ लिया है, फिर भी वो मान रहे हैं मैंने कहां से लिया। मैं 2 मिनट ज्यादा कर रहा हूं, मैं देखता हूं, लेकिन ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने मेरा पक्ष रखा है आपके सामने। मुझे आशा है कि मेरा ये पक्ष आपको सर्वथा स्वीकृत होगा। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। पाणिनि और हेमचंद्राचार्य एक विचार है। आशा
डॉक्टर महाकांत जी ने एक पेचीदा सवाल उपस्थित किया कि दो वैयाकरणों की तुलना क्या हो सकती है। दोनों के कालखंड भिन्न भिन्न है, दोनों की कक्षाएं भिन्न भिन्न है, इसका स्वीकार हम करते हैं। पाणिनि बरसात के पहले दिन ही बताया था मेरे ख्याल से कि पाणिनि ऋषि परंपरा के थे और हेमचंद्र आचार्य परंपरा के थे। ऋषि और आचार्य दोनों में वस्तुतः एक या दूसरी रीति से कुछ कक्षा भेद रहता ही है, कुछ कक्षा है। तो ऋषि को हम इस प्रकार थोड़ा सा ऊर्ध्व ऊंचा मानते हैं और आचार्य तो बाद में आचार्य बनता है। ऋषि तो जन्मजात हो जाता है, ऐसा भी हम कहते हैं। तो आचार्य को अपनी प्रज्ञा से या तो अपने ज्ञान से वो आचार्य पद की प्राप्ति करता है। तो दोनों की कक्षा भेद होने के कारण इस प्रकार दोनों के व्याकरणों का भी समीक्षात्मक अभ्यास हो सकता है, लेकिन यदि तुलनात्मक अभ्यास करना चाहे तो ऐसे प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। महाकांत जी ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात है। और यूँ भी ये आचार्य हेमचंद्राचार्य समारोह ये केवल हेमचंद्राचार्य की प्रशस्ति के लिए नहीं है केवल, वो गुणगान तो हम करते हैं बराबर, वो गुणगान के पात्र भी हैं अभी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। वो तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से तो वो केवल वैयाकरण नहीं थे, केवल वैयाकरण नहीं थे, लेकिन वो तो काव्य पुरुष थे ना, काव्य पुरुष थे। और उन्होंने साहित्य का विहार किया, साहित्य का विहार किया। फिर वो साहित्य काव्य शास्त्र का हो, अलंकार शास्त्र का हो, व्याकरण शास्त्र का हो, योग शास्त्र हो या कोश शास्त्र हो, ये सभी परंपराओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया था और उसी के कारण वो अपने ग्रंथ का निर्माण कर सके। तो आचार्य पद को उन्होंने सार्थक किया और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है। और यह भी हम कहते हैं कि आचार्य जी तो संकलनवादी थे, समन्वयवादी थे। सभी परंपराओं का, व्याकरण की सभी परंपराओं का संकलन उनके व्याकरण ग्रंथ में हम देख सकते हैं। फिर व्याकरण का ग्रंथ हो या तो काव्यशास्त्र का ग्रंथ भी हो तो भी, वो शास्त्र हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार समन्वयवादी एक बड़े विद्वान थे। हम विद्वान अवश्य कह सकते हैं, मूर्धन्य विद्वान कह सकते हैं, लेकिन ऋषि और आचार्य दोनों में बड़ा कक्षा भेद रहती है। और परिणाम स्वरूप यही हुआ, मैं जरा संकोच के साथ कहता हूँ कि पाणिनि व्याकरण को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हेमचंद्राचार्य जी के व्याकरण को हम सेमिनार के लिए पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों में उनका अध्यापन कार्य उस ग्रंथ का अध्यापन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, यह भी एक बड़ा सवाल है। बस इतना है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका महाकांत जोशी जी का। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छी चर्चा यहाँ प्रस्तुत की। मैं कुछ निवेदन आप लोगों से कर देना चाहता हूँ कि आप ये बात सही है कि हेमचंद्र का जो शब्दानुशासन है वो प्रतिस्पर्धा में लिखा गया है, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा का भी एक अंग है, हमें ऐसा स्वीकार करना चाहिए। राजा को प्रतिस्पर्धा हो सकती है, हेमचंद्र को प्रतिस्पर्धा नहीं। उन्होंने तो एक राजा की, एक जो उनका उस समय का जो नर्प है, भूपति है, उसकी आज्ञा को स्वीकार किया है, लेकिन उनके मन में कोई प्रतिस्पर्धा या ईर्षा नहीं रही होगी पाणिनि के प्रति या किसी भी आचार्य के प्रति। और जहाँ तक बात यह है कि ऋषि और मुनि की, जैसा प्रजापति जी ने कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये हमें साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये शास्त्र का विकास है। और शास्त्र का विकास देखिए, कोई जैन और बौद्ध और वैदिक ऐसा कोई शास्त्र नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कोई बकौती नहीं होती, सांप्रदायिक नहीं होता। वो तो ज्ञान ज्ञान होता है, कहीं से मिल जाए हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर सकते हैं।
अब हम विचार करें, पाणिनि महाराज ने, पाणिनि ऋषि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, लेकिन अष्टाध्यायी क्या हुआ? अष्टाध्यायी वो आद्यंत बनकर के नहीं रह पाई, कात्यायन को वार्तिक लिखना पड़ा। महाभाष्यकार पतंजलि को उनको वार्तिक लिखना पड़ा, इनको महाभाष्य लिखना पड़ा। क्यों? और उनको प्रामाणिक माना गया। यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, बात बात का मुनि प्रामाण्य है। माने अगर भाष्यकार जिस बात को कह रहे हैं उस बात को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है जो बनस्वत जो है उन्होंने पाणिनि महोदय ने जो कहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये शास्त्र का विकास है, हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और वो साधु थे, संत थे, साधु थे, संत थे, घर को छोड़ दिया था, उन्हें कोई आग्रह नहीं था किसी प्रतिस्पर्धा के लिए, किसी स्वार्थ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा का उन्हें मोह नहीं रहा। प्रतिष्ठा छोड़ करके ही आदमी बाहर जाता है। आप घर छोड़ते हैं तो इसका मतलब है आपने अहंकार को छोड़ा है। कोई भी संत हो, कोई भी ऋषि हो, कोई भी महामुनि हो, वो पहले अहंकार का विसर्जन करता है तभी कुछ आगे बढ़ पाता है। अगर अहंकार लेकर के बैठा रहता तो उसको ज्ञान का क्षेत्र नहीं होगा, विकास नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उसी दृष्टि से देखना। और एक पूरी परंपरा को आप देख लीजिए, मैं जैन मुनि से नहीं कह रहा हूँ। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। ये विचार कौन कह सकता है? ये विचार कौन रख सकता है? युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। किसी ने भी बात कही हो, अगर युक्ति और शास्त्र से युक्त है तो हमें ग्रहण करना चाहिए। न पुराण मित्येवं साधु सर्वम। आचार्य हमारे आचार्य या कविवर या महामुनि या महाकवि कालिदास ने कहा कि पुराना होगा वही अच्छा होगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है, नया भी अच्छा हो सकता है। इसलिए कि हमें इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। मेरा ब्रह्म निवेदन है, मैं किसी आवेश और आक्रोश में नहीं कर रहा हूँ, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक दृष्टि से सही कहा, लेकिन शास्त्र का विकास किसी भी परंपरा में हो सकता है। उन्होंने कातंत्र व्याकरण की चर्चा की। कातंत्र का शब्द है कु ईशत तंत्रम कातंत्रम। कु का मतलब है जो लघु है, ईशत है हाथ छोटा है। और हमारे पास समय नहीं है, समाज के पास समय नहीं है, व्यक्ति के पास समय नहीं है कि बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ सके। अब प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए। वृद्धि राधिच्य, कहाँ से वृद्धि हो गई? पहले बात संज्ञा की बात करते, सर्वनाम की बात करते, कारक की बात करते, नहीं वृद्धि से शुरू कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है उनका लेखन या उनकी जो परंपरा थी, जो बैकग्राउंड थी, उन्होंने अपनी दृष्टि को ध्यान में रख करके उसका शास्त्र का विस्तार किया। कात्यायन ने वार्तिक लिख दिए, महाभाष्यकार और भी भट्टोजी, दीक्षित और अमुक कितने आचार्य हो गए उसका परिष्कार करते करते, प्रक्रिया करते करते। तो ये शास्त्र का विस्तार है। शास्त्र के विस्तार को हमें शास्त्र के विस्तार के रूप में देखना चाहिए। कोई प्रतिस्पर्धा और कोई ईर्षा और द्वेष और वैमनस्य से कोई शास्त्र विकास नहीं होता, किसी भी परंपरा में नहीं होता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। इसलिए हमें इसको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। कोई और देखिए, मैंने एक प्रोजेक्ट किया जैन उद्धरण कोश। जैन उद्धरण कोश का प्रसंगता एक मिनट और में ले रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मैंने देखा कि शास्त्रकार पूर्वाचार्य को ग्रहण कर रहा है, लिख रहा है, यथोक्तम नाम नहीं दिया, ग्रंथ का भी नाम नहीं दिया, व्यक्ति का भी नाम नहीं दिया, यथोक्तम चे। अब खोजते रहिए आप, यथोक्तम किसने कहा? उनको ये आवश्यकता नहीं थी कि हम चोरी कर रहे हैं। उन्हें अपने शास्त्र का विस्तार करना था, अपनी बात को कहना था, उन्हें पूर्व पक्ष को रखना था कि अमुक जगह ऐसा कहा है, किसी ने ऐसा कहा है, उसका ये पक्ष भी हो सकता है। तो इससे शास्त्र का विस्तार होता है। हमें शास्त्र की विस्तार की दृष्टि से इन शास्त्रों को देखना चाहिए। किसी परंपरा, संप्रदाय और आग्रह पूर्वाग्रह को एक तरफ रखना चाहिए। हमें शास्त्र के विस्तार को दृष्टि में रखना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस विषय को लिया और एक चर्चा हम लोगों के सामने रखी। आप सबका पुनः धन्यवाद। तो 11:30 થવા જાય છે, હજી 9:10 પૂરો છે, તો જરા ફરી એકવાર વારંવાર એક સારાંશ તમારો। वंदनीय महानुभाव, पूजनीय अध्यापक गुरुजनों અને મિત્રો, આજનો મારો વિષય છે હેમચંદ્રાચાર્યના કાવ્યાનુશાસનમાં ગુણ વિવેચન। આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય કાવ્યાનુશાસનના ચોથા અધ્યાયમાં ગુણ વિવેચનની સરસ મજાની વાત કરેલી છે। કાવ્યાનુશાસનના પ્રથમ અધ્યાયના પહેલા સૂત્રમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ગુણયુક્ત શબ્દ અને અર્થના સાયુજ્યને કાવ્ય કહ્યું છે। दोष वगरना गुणवाळा અને अलंकारથી યુક્ત પણ હોય તેવા શબ્દ અને અર્થ તે કાવ્ય। અને એ જ અધ્યાયના
12મા સૂત્રમાં રસોના ઉત્કર્ષનું કારણ તે ગુણ. ગુણ અને દોષ અનુક્રમે રસના ઉત્કર્ષ તથા અપકર્ષના કારણરૂપ છે, પરંતુ ઉપચારથી તેઓ શબ્દ અને અર્થના ધર્મો મનાય છે. રસ કે જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવાય છે તેના ઉત્કર્ષના કારણો તે ગુણો છે, જ્યારે રસના અપકર્ષના કારણો તે દોષો છે. તે બંને રસના જ ધર્મો છે, પરંતુ ઉપચારથી તેને ઉપકારક બનતા શબ્દ અને અર્થના ધર્મો પણ કહેવાય છે. ગુણ અને અર્થના ધર્મો પણ કહેવાય છે, અને ગુણ અને દોષનું રસાશ્રયત્વ અન્વય અને વ્યતિરેક દ્વારા સંભવે છે, અને તેથી જ જ્યાં દોષો હોય ત્યાં જ ગુણો પણ રહે છે, અને તે ખાસ રસને વિશે જ દોષો રહેલા છે. આમ અન્વય અને વ્યતિરેક દ્વારા ગુણ અને દોષનો આશ્રય રસ જ છે. આગળ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જણાવે છે કે 3 જ ગુણોનો તે ઉલ્લેખ કરે છે અને ગુણ વિવેચન તેઓ પ્રસ્તુત કરે છે.